भारत का नुकसान हमारा नुकसान नहीं है। भारत हमको আমি তো ভারত থেকে বিনা পয়সায় জিনিস কিনি না। मैं पैसा देता और भारत से सामान लेता। मेरा আপনি আমার মানুষ ভারতে যায় পয়সা দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে, বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে না, বিনা পয়সায় ট্রিটমেন্ট করে না। আমরা পয়সা দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি। আলহামদুলিল্লাহ পাকিস্তান আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আমরা পাকিস্তানে চলে रिएक्शन विद एहसान। आज हमारे साथ मौजूद हैं बांग्लादेश से सैफुर रहमान चौधरी साहब। इनका ताल्लुक बांग्लादेश की एक पॉलिटिकल फैमिली से है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सैफुर रहमान चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने एहसान रिएक्शन को टाइम दिया। थैंक यू सो मच। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার আমার সাথে আপনি যোগাযোগ করার জন্য এবং এই লাইভ ভিডিওতে আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। बताइएगा कि बांग्लादेश में वाकई ही हिंदू सेफ नहीं है, मिनोरिटीज का ख्याल नहीं रखा जाता। ধন্যবাদ। আপনার প্রশ্নের জবাবে আমি বলছি, আমি তো এই বাংলাদেশে বসবাস করছি, বাংলাদেশ থেকে তো বাইরে নাই আমি এখন। তো বাংলাদেশের ভিতরে হিন্দু কোথায় এইভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, কোথাও এইভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, যেটা করা হচ্ছে সেটা ভারতের গদি মিডিয়া করছে। মোদির যে গদি মিডিয়া সেটাই এটা করে যাচ্ছে। কারণ বিগত 16 বছর আমরা একটা স্বৈরাচারী শাসকের আন্ডারে ছিলাম। শেখ হাসিনা নামক একজন স্বৈরাচার ছিল, ওনার আন্ডারে ওইখানে ছিলাম। তখন আমরা কোন রকম কথা বলা যেত না, এবং সেই ছিল এই ভারতের এবং মোদির খুবই আস্থাভাজন, এবং মোদির কথা মতো পুরোপুরি চলতো। আমাদের দেশটা পুরোটা একটা জেলখানার মতো ছিল তখন, যার কারণে কেউ কথাবার্তা বলতে পারতো না। আর হিন্দু মাইনরিটির কথা যেটা বলছেন, হিন্দুরা সহাবস্থানে এখনো আছে। একটা সামান্য একটা আতঙ্ক হতে পারে, এটা যে কোনো জায়গায় হতে পারে, কিন্তু আমাদের মোদি এই যে ভারত আমাদেরকে যে দোষটা দিচ্ছে, হিন্দু মাইনরিটি আগে ভারত আমাদেরকে দেওয়ার আগে ভারতের দরকার ভারতের নিজের দিকে দেখা। ভারতের মোদিকে তো আগে মোদিকে বলা হতো গুজরাটে কষায়, অনেক মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত মোদি। এখনো কাশ্মীর, আমি একটু ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছি। এই কাশ্মীরে এখনো মোদি এবং অমিত শাহ ওরা মিলে এখনো মুসলিম নিধন করছে, মুসলিম হত্যাকাণ্ড করছে। এইগুলি তাদের চোখে এগুলি পড়ে না, শুধু বাংলাদেশকে অশান্ত করার জন্য। শেখ হাসিনা রাজত্বে থাকার ফলে যে সুযোগ সুবিধা ভারতে ভোগ করতো, এটা একটা কলোনি স্টেটের মতো ছিল ভারতের। এখন সেটা চলে গেছে, ভারতের হাত থেকে চলে গেছে। গত 5ই আগস্ট ছাত্র জনতার বিপ্লবের 5 अगस्त 5 আগস্ট ছাত্র জনতার যে বিপ্লব সংগঠিত, বাংলাদেশ নতুন করে স্বাধীনতা হয়েছে, মানুষ নতুন করে স্বাধীনতা পেয়েছে। এই দেশে আমরা কখনো ভাবি না হিন্দুরা অন্য আমরা হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান আমরা সবাই ভাই ভাই, আমরা সবাই সবসময় একসাথে থাকার চিন্তা ভাবনা করি। এবং আমাদের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। সেই শিক্ষাটা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই শিক্ষাটাই আমাদেরকে দিয়েছে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই শিক্ষাটা আমাদেরকে দিয়েছে। কিন্তু আগে মোদি অমিত শাহ আমাদের ঘুষপেটিয়া বলে, অমিত শাহ আমাদেরকে উল্টায় মারবে বলে। একটা সভ্য দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, গৃহমন্ত্রী আর একটা পরের দেশের মানুষকে এইভাবে বলতে পারে? দুনিয়ায় কোন জায়গায় নজির আছে? নজির নাই, एग्जाम्पल नहीं है ऐसा। दुनियाতে কোনো জায়গায় ऐसे एग्जाम्पल नहीं है जो दूसरे एक मुल्क আরেকটা দেশের মানুষকে উল্টাইয়া মারবে। একটা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, तारा बराबर एक नफरत पैदा करके, नफरत फेंक के इन लोग बार बार पावर में आने चाहते हैं। इन लोग का बिजनेस है रिलीजियन को, धर्म को इस्तेमाल करके बार बार पावर में आने के, बार बार ক্ষমতা আসার জন্য তারা চায়। এই যে लेकिन सैफुर रहमान चौधरी साहब, ये इंडियन खुद मान रहे हैं इस टाइम, इंडियन मीडिया भी, इंडियन गवर्नमेंट भी, कि अगर इस बार हमने कोई जंग की 1971 की तरह, तो इस बार पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर हमारे खिलाफ लड़ेंगे। ये डर भी है उनको। थैंक यू। फिर भी आपको बोल रहा, আমি আবার আপনার প্রশ্নের ইয়েতে আপনি একটা সওয়াল উঠিয়েছেন। 1971 সালের বাংলাদেশ আর 2024 সালের বাংলাদেশ আসমান জমিন ফারাক, আসমান জমিন ফারাক। একটা শক্তিশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা শক্তিশালী সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী আমাদেরকে দিয়েছে। আমরা মুসলমান, আমরা হিন্দুদেরকে ঘৃণা করি না, ভালোবাসি। नफरत नहीं फेंकते हिंदू के लिए। हमारे लिए हमारा मोहब्बत है हिंदू के लिए, और दूसरे रिलीजन के लिए मोहब्बत है। ये है इस्लाम का बहुत बड़ा एक शिक्षा। इस्लाम इस्लाम प्यार और मोहब्बत का दर्स देता है। हमारा पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया, उन्होंने उनको इतना अत्याचारित हुआ, लेकिन लव किया, प्यार किया, जो उनको দিয়া। তো যিনি নবীজিকে যারা দুঃখের মধ্যে ফেলেছেন তাদেরকে ভালোবেসে গেছেন, নবীজি আমাদেরকে সেই শিক্ষা দিয়েছেন। আর ভারত যতই মোদি যতই চেষ্টা করুক, মোদির ফার্স্ট এজেন্ডা ফেল, সেকেন্ড এজেন্ডা ফেল, থার্ড এজেন্ডা ফেল, এভরি এজেন্ডা উইল বি ফেল। মোদির প্রত্যেকটা এজেন্ডা ফেল হবে, কারণ মোদি আল্লাহকে মোদি ভগবান বলে, ভগবানকে মোদি ভয় করে না। हम लोग ऊपर वाला को हम लोग मानता भी और डरता भी। हम लोग आखिर कियामत के हमरा विश्वास है हम लोगों के लिए, ये मुसलमान का पास वो विश्वास है। वीजे सैफ रहमान चौधरी साहब वो वीजे बंद कर रहे हैं, ट्रेड बंद कर रहे हैं। हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ ना ट्रेड करेंगे, ना ही उनको वीजा देंगे, ना ही ट्रीटमेंट के लिए उनको आने देंगे, और वो जाएं अब लाहौर में, जाएं अब कराची में, इनको इधर इंटर नहीं होने देंगे। तो हमारे हमें तो भाई, हम तो आपको वेलकम करते हैं, आप आए, हमारे भाई हैं। ধন্যবাদ আপনার এই প্রশ্নের জন্য। আমরা ভারত ট্রেড বন্ধ করবে, ভারত ভিসা বন্ধ করবে, ভারত এটা বন্ধ করবে, ভারত ওইটা বন্ধ করবে, লাভ টাকা ক্ষতি টাকা ভারতের ক্ষতি। भारत का नुकसान हमारा नुकसान नहीं है। भारत हमको, আমি তো ভারত থেকে বিনা পয়সায় জিনিস কিনি না, मैं पैसा देता और भारत से सामान लेता। मेरा आदमी আমার মানুষ ভারতে যায়, পয়সা দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে, বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে না, বিনা পয়সায় ট্রিটমেন্ট করে না, আমরা পয়সা দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি। আলহামদুলিল্লাহ, পাকিস্তান আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আমরা পাকিস্তানে চলে যাব ট্রিটমেন্টের জন্য, চিকিৎসার জন্য চলে যাব। আমরা আমাদের দেশের নিরাপত্তার জন্য, আমাদের ডক্টর ইউনূস স্যার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা সেটাই অ্যাকসেপ্ট করব, কারণ উনি পাকিস্তানের সাথে একটা গুড पाकिस्तान भाई আমরা हम लोग क्यों पाकिस्तान के साथ ये नफरत फैले हुए हैं? हमारा मुस्लिम भाई है, हमको अभी मदद करना चाह रहा। मेरा हमारा ये दुस्समय में, मेरा ये अभी क्रिटिकल मोमेंट में पाकिस्तान हम लोगों को मदद करना चाह रहा, ये तो क्यों हम लोग नहीं लगा? हाँ, हम लोग नफरत नहीं, हमारा प्यार है, पाकिस्तान के साथ भी प्यार है। भारत के साथ भारत का हम लोग नफरत नहीं फेंका, खुद मोदी फेंका। उनको मोदीर परराष्ट्र नीति, मोदीर फॉरेन पॉलिसी बड़ भूल। মোদিকে কে হয়, মোদির ব্রেন নাই, আর নাহলে মোদিকে যারা মোদির উপদেষ্টা যারা, তাদের दिमाग नहीं है उन लोगों का, ताদের मगज नहीं। आपका झंडा जला दिया है कोलकाता में डिप्टी हाई कमीशन के ऑफिस के हाँ, बाहर, वो और डॉक्टर वो यूनूस का हमारा पुतला भी दिल में जला नहीं दिया। लगा, हमारा झंडा जलाया, ये हमारा दिल नहीं जला हमको। और उसके यहाँ कुछ होने से, एक छोटा होने से उसको बड़ा करके देखते हैं इन लोग। उन लोगों का अभी काम है, এখন ওদের কাজ হচ্ছে सारा दुनिया में हमारा बारे में उल्टा सीधा उल्टा से संदेश देने के लिए, ये उन लोगों का काम। कि कोई भी दुश्मन मैली आंख से ना देख सके दोनों मुल्कों की तरफ। भाई साहब, हमारा देश का सेफ्टी के लिए वाई विल नॉट डू, हमारा देश का, हमारा मुल्क का सेफ्टी के लिए हमको तो बचने होगा ना। इतना सितम Yes. कर रहा मोदी इतना सितम कर रहा है, इतना तंग कर रहा हम लोगों को। बांग्लादेश एक अच्छा एक मुल्क, यहाँ का आदमी बहुत सुकून वाला आदमी है, इतना इतना तंग कर रहा है, এত কষ্ট দিচ্ছে Peace. মোদি বাংলাদেশকে, এত কষ্ট দিচ্ছে। তো আমরা আমাদের যদি পাকিস্তান ভাই যদি পাকিস্তানি ভাইরা যদি আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, ইসলামে কি বলে? इस्लाम बोले सेटा हाथटा ग्रहण करे नाओ, वो हाथ को लेने के लिए, चूमा देने के लिए। क्यों हम लोग नहीं करोगे? हमारा सेफ्टी के लिए अगर पाकिस्तान से लेने होगा तो पाकिस्तान से लूंगा। चाइना से हम लोग अभी खरीद कर रहा, तो सामान खरीद कर रहा, जापान के साथ एग्रीमेंट हो रहा मिलिट्री सामान खरीद करने के लिए, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? हम लोग
पाकिस्तान के साथ करने भी हमारा अभी हमारा मुल्क का आदमी भी ये चाहे क्यों मुल्क का आदमी इतना बेवकूफ नहीं है এত বেকুব না এই দেশের মানুষ বুঝে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ कौन सा वाला रात काला है कौन सा वाला सफेद है हमारा मुल्क का आदमी अच्छे से पहचानता ही है अच्छा, आपके मुल्क के लोग कितने परसेंट भारत से, मोदी से प्यार करते हैं? भाई साहब अभी ऐसा সিচুয়েশন এই বাংলাতে বলি প্রথমে তারপরে উর্দুতে বলবো এখন পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে ভারতের অত্যাচারে মানুষ তিক্ত বিরক্ত সীমান্তের মধ্যে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত বাঙালিদেরকে মেরে मेरे सीमांते बॉर्डर में लटका देता आज कितना साल 16 साल में एक भी कड़क जवाब नहीं दिया शेख हसीना का रीजन अभी जो है बिल्कुल। डॉक्टर इनूस टिट फॉर टैट अभी एक या। करने से एक गोली देने से 2 गोली भारत की तरफ देने के लिए ऑर्डर है बीजेपी पे यही तो बीजेपी उनको का order टेंशन है, यही तो उनको मसला है, यही प्रॉब्लम है कि ये बांग्लादेश क्यों आगे से रिप्लाई क्यों कर रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग किस्म नहीं, का जो कंडेम है। भाई साहब ये है लेकिन इनका अभी कारवार नहीं चल रहा बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश का अंदर कॉरिडोर करके वहां 7 सिस्टर का जाएगा ऐसा एक इन लोगों का सोचना था अभी ये नहीं होगा ये सब नहीं मिलेगा ये सस्ता में कुछ नहीं मिलेगा जो पहले दिया वो दिया खत्म खत्म हो गया सब कुछ। अगर अगर जंग हो जाती है तो कौन सा मुल्क जीतेगा? अगर जंग हो अल्लाह जाते ना तो करे। मैं वॉर को पसंद नहीं करता, मैं पीस, मैं भी पसंद नहीं बांग्लादेश और करता पाकिस्तान मैं भी पसंद नहीं करता अगर पीस लविंग कंट्री है, पीस लविंग नेशन है, ये हाँ, पीस को हाँ, पसंद हाँ। करते हैं। बांग्लादेश में अगर अटैक कर लिया तो इंडिया का इतना फौज नहीं है जो बांग्लादेश को अटैक करके जीत पाएगा पहले सवाल ये क्यों पाकिस्तान बॉर्डर में चाइना बॉर्डर में बहुत ज्यादा फौज इनको रखने होगा उनको मालूम है क्या हालत हो जाएगा उसको बांग्लादेश पे अटैक करने से मेरा एक तरफ पाकिस्तान भाई है दूसरे एक तरफ चाइना है हम चाइना का आपके बिजनेस साथ है हैं, हमारा ये इंशाल्लाह। चाइना का बिजनेस है यहाँ पाकिस्तान के साथ अभी जितना दिन आ रहा बिजनेस ज्यादा होते जा रहा पाकिस्तान के साथ ये हम भी चाह रहा अच्छा, है हम अभी जैसा मदद कर रहा है ऐसे मदद पाकिस्तान हम लोगों के लिए करे कृष्णा दास को सपोर्ट कर रहा है, जिसको बैक कर रहा है कृष्णा दास को भारत, वो तो चाइल्ड अब्यूज में भी मुलव्वस निकला है। वो उसको वीडियो शायद आप देखा और नहीं देखा मालूम नहीं लेकिन हम उसको वीडियोस देखा खाली चाइल्ड नहीं ये औरत को भी ऐसा किया ये तो हमारा बात नहीं है यार ये है वीडियो सबूत देता उसका जो वीडियो है वीडियो सब खुद इस्कॉन भी बोला 2-3 महीना पहले उसको ये सब काम के लिए उसको निकाल दिया गया ইসকন নিজে বলেছে চিন্ময় দাসকে 2-3 মাস পূর্বে তার অনৈতিক কার্যকলাপ এই সমস্ত কারণে তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে ইসকন থেকে তো ইসকন নিজে স্বীকার করেছে এটা आखिरी सवाल है चौधरी साहब आपसे, पाकिस्तान कब आ रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ा दुआ कीजिए मेरा बहुत तमन्ना है मैं पहले इंडिया गया मेरा बहुत तमन्ना है पाकिस्तान में मेरा दोस्त भी है कुछ मैं कभी कभी बात की चित करता है इन लोगों को साथ तो तो फिर आप मेरे हमारा पास आएंगे? तमन्ना है इंशाल्लाह पाकिस्तान आने से आपका साथ आप एहसान भाई का साथ तो मैं जरूर बातचीत करूंगा और मैं दूसरे एक वीडियो देखता था थोड़ा एक बात बोल रहा दूसरे वो जो जिन का जो वीडियो है वही पाकिस्तान का वो वीडियो ज्यादा देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है वही शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच सैफुर रहमान चौधरी साहब, बांग्लादेश से व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपने इनका एनालिसिस देखा, कितना आप इनसे एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जाइएगा वहां पर फीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में एक बात बोल रहा हम चाहता हमारा बंगाली कौम अभी चाह रहा पाकिस्तान ठीक है हम लोग को मदद कर रहा हम लोग जो दिन आएगा ज्यादा से ज्यादा ये बढ़ेगा ये ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा एक भाई हमारा एक मुस्लिम भाई क्यों हम उसको दूर पे रखेगा पाकिस्तान हमको ले रहा सीने पे हम भी पाकिस्तान को लेंगे इंशाल्लाह।